Chapter 3 Human Reproduction. Question 1. Choose the incorrect statement from the following. First, in birds and mammals, internal fertilization takes place. B. Colostrum contains antibodies and nutrients. C. Polyspermy in mammals is prevented by the chemical changes in the egg surface. D. In the human female, implantation occurs almost 7 days after fertilization. So the correct option is C. Polyspermy in mammals is prevented by the chemical changes in the egg surface. Question number 2. Identify the correct statement from the following. Options are high levels of estrogen triggers the ovulatory surge. B. Oogonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. C. Sperms released from seminiferous tubules are highly motile. D. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. So the correct option is D. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. Question 3. Spot the odd one out from the following structures with reference to the male reproductive system. So the correct answer is D. Isthmus, because isthmus is a narrow part of fallopian tube which is present or closest to uterus in females, right? So question number 4. Seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by first seminal vesicle, 2 prostate gland, 3rd urethra, and 4th bulbourethral gland. So correct option is B, first, second and third. Okay. Now question number 5. Spermiation is the process of the release of sperms from seminiferous tubules, vas deferens, epididymis, prostate gland. So the correct answer is seminiferous tubule. Question 6. Mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around. Option B is correct, 11 to 17 day of menstrual cycle. Question 7. Acrosomal reaction of the sperm occurs due to options are its contact with zona pellucida of the ova. B. Reaction within the uterine environment of the female. C. Reactions within the epididymal environment of the female. And D. Androgens produced in the uterus. इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कोशिश किया करिए कि आप उसमें ऑड वन आउट करना सीखें, मतलब जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको डिलीट करना सीखें. जो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आंसर गलत ही होगा उसको पहले ही टिक कर देंगे तो आपके जो भी गलत स्टेटमेंट्स होंगे वो आउट हो जाएंगे. तो इस तरीके से आप सही स्टेटमेंट को टिक करने में आसानी होगी आपको. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवर. Question number 8. Which one of the following is not a male accessory gland? So the correct answer is B. ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम. Which one of the following is not a male accessory gland? Not बोला है ना, not भी आपको ध्यान से पढ़ना है. तो सेमिनल वेसिकल तो है ही, ठीक है, और एम्प्यूला, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल. तो देखिए सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ये तीनों किसके पार्ट हैं? एक्सेसरी ग्लैंड के पार्ट है. किसके? मेल के. ओनली एम्प्यूला जो है वो क्या है? हमारा फीमेल का पार्ट है, राइट? ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9. The spermatogonia undergo division to produce sperms by the process of spermatogenesis. Choose the correct one with reference to above. So options are spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic cell division. B. Primary spermatocyte divide by mitotic cell division. C. Secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second meiotic division. 4th, spermatozoa are transformed into spermatids. So correct answer will be secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second meiotic division. Okay, moving on to question number 10. Match between the following representing parts of the sperm and their functions and choose the correct options. Okay, so here we have column 1 and column 2. So let's match it. अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हो या मैचअप्स वाले क्वेश्चंस हो तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप एलिमिनेशन वाला रास्ता चुनें. मतलब कि अगर आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास सही ऑप्शन तक पहुंचने के रास्ते जल्दी खुलेंगे और आप इजीली चूज कर पाएंगे करेक्ट ऑप्शन को. इसमें भी हम देख लेते हैं. जैसे हम बात करें फर्स्ट की हेड, तो हेड में जेनेटिक मटेरियल
की बात करते हैं हम, क्योंकि हेड ही एंट्री करता है हमारे ओवम में, राइट। और मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस में हमारी आ जाती है एनर्जी, राइट। एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम में होती है एंजाइम, और टेल की बात करें तो टेल होता है मोटिलिटी के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो अगर हम बाकी ऑप्शंस में अगर चेक करें तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक अगर हम बात करें टेल वाली, तो टेल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डी का 2 किसी में दिख रहा है आपको, डी का टू हमें किसी में नहीं दिख रहा। तो जैसे हमने देखा कि डी का 2 इसमें है तो हम क्विकली इस ऑप्शन पे चले जाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, सेकेंडरी oocyte। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, हमें कॉलम दिए हैं, चलिए देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट है हमारा ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारा ये होगा आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, राइट, अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर की जो सेल्स होती हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और उसके अंदर जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं, है ना। और इनर सेल मास ही हमारी बनती है आगे जाके, क्या बनती है हमें इनर सेल मास? मेसोडर्म, है ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, यही बनती है और हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड वाला देखते हैं तो सेकंड वाला जो है हमारा क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लीवेज आता है किसमें? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट में क्लीवेज, राइट। और जाइगोट क्योंकि 2 सेल होता है जाइगोट, राइट, 2n कहते हैं इसको हम। तो ये जब और मतलब इसका जब डिवीजन होगा माइटोटिकली, जब वो डिवाइड करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं ना। उसके बाद सी की बात करें, इनर सेल मास, तो वही अभी हमने बात करी ट्रोफोब्लास्ट के बारे में, वही ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, बताया था अभी जस्ट, है ना। और डी इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन का पता ही है, लास्ट ऑप्शन ये बचता है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन दी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अगेन मैं वही कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैचअप्स वाले, तो आप कोशिश किया करो कि आप 1 या 2 करेक्ट ऑप्शंस को पहले मिला लो, उसके बाद आपको गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली टाइम बचा के जल्दी से अपना ऑप्शन टिक लगा पाओगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। नॉट सिक्रेटेड, आपको ये बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन में जहां नॉट लिखा हो, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, LH, नॉट सिक्रेटेड, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये, इसका आपको पता ही होना चाहिए कि LH सर्ज हम किसको कहते हैं, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और LH सर्ज कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। द वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बी, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। 15th, urethral meatus refers to the urinogenital duct, opening of vas deferens into urethra, external opening of the urinogenital duct, और muscle surrounding the urinogenital होगा वो, है ना, यहाँ गलत लिखा है, urinogenital duct. So correct option is external opening of the urinogenital duct. हम यहाँ बात कर लेते हैं, मियाटस वर्ड आया ना यहाँ पे, तो मियाटस वर्ड के हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मियाटस मीन्स नेचुरल बॉडी ओपनिंग और कैनाल, राइट। यूरिथ्रल मियाटस रिफर्स टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। मोरूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज, ऑप्शंस, between the zygote and blastocyst, between the blastocyst and gastrula, after the implantation, between implantation and parturition। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। 17 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा ये। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा या कोरियन। तो इसका आंसर है ए, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसका जो आंसर है वो होगा लेबिया माइनोरा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन है कि लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज अंडर लेबिया मेजोरा सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग
Fimbriae, infundibulum and isthmus along with ampulla are parts of oviduct or fallopian tube. Thank you very much and all the very best.